Good morning, students. In the previous video, we have done introduction, discovery, location and period, first phase and second phase of art of Ajanta. And now today we are going to start another topic, and it's number of caves, types of caves, technique of Ajanta frescoes and murals, colors of Ajanta, and difference between frescoes and murals. So let's start with number of caves. Ajanta is a complex of 29 Chaitya and Vihara caves plus one unfinished cave that were chiseled into live rock and are host to some of the best preserved paintings and sculptures. Cave number 1, 21 feet long, is the biggest cave, which is home to the figure painting of Padma Pani. Cave number 29 is the best stup cave. Cave number 17 has the highest number of paintings. तो अजंता के अंदर क्या है, 29 चैत्य और विहारा केव्स हैं, जिसमें एक और है जो फिनिश नहीं की हुई है, जो केव है इसकी, और इन रॉक्स को चीजल के साथ में बनाया गया है। और ये अजंता की पेंटिंग्स और स्कल्पचर जो हैं वो अभी तक प्रिजर्व करके इनको रखा गया है। केव नंबर 1 जो है वो 21 फीट लॉन्ग है और बिगेस्ट केव है, जिसके अंदर पद्म पानी के फिगर्स पेंटिंग के घर को शो किया है। और केव नंबर 29 जो है वो बेस्ट स्तूप केव है। केव नंबर जो 17 है उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ केव्स। These caves are of two types. First, Chaitya or Stup caves. These were the places of worship and religious discussion. Cave number 9, 10, 19, 26 and 29 are Chaitya caves. तो जो फर्स्ट है हमारी वो चैत्य और स्तूप केव है, जिनके अंदर वर्शिप और रिलीजियस डिस्कशन होती हैं। इसमें केव नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 ये चैत्य केव्स हैं। सेकंड, विहारा केव्स और लिविंग केव्स। दे वर द लिविंग प्लेसेस फॉर बुद्ध भिक्षुस। केव नंबर 1 to 8, 11 to 18, then 20 to 28 and 30th are विहारा केव्स। तो जो सेकंड हमारी केव है उसे विहारा केव भी बोला जाता है और लिविंग केव्स भी बोला जाता है, जिसके अंदर बुद्ध भिक्षुस रहते थे। और इन केव्स के नंबर हैं 1 to 8, 11 to 18, 20 to 28 एंड 30th। ये सभी विहारा केव्स हैं। इसके बाद है हमारा टेक्निक ऑफ अजंता फ्रेस्कोस एंड म्यूरल्स। Ajanta frescoes were done in tempera style. The surface of place where painting was to be done was made rough using some tools. A plaster containing stone powder, cow dung and rice straw husk was applied on that to a thickness of half to 2 inches. After applying plaster, the surface was beaten with flat bamboo sticks. After 3 or 4 layers of same plaster beaten every time with bamboo sticks, the surface was covered by a thin coating of lime paste, which was treated like a painting surface. तो इसमें बताया जो अजंता के फ्रेस्कोस हैं उन्हें टेम्परा स्टाइल में बनाया गया था, और जिस सरफेस पर पेंटिंग बनानी होती थी उसे पहले एक टूल के साथ रफ़ किया जाता था और उस पर
एक प्लास्टर लगाया जाता था जिसमें स्टोन पाउडर, काउडंग और राइस स्ट्रॉ हस्क होता था, और इसकी जो थिकनेस होती थी वो 1/2 से 2 इंचज़ तक होती थी। और इसको अप्लाई करने के बाद एक फ्लैट बैम्बू स्टिक के साथ उसे बिटन किया जाता था, और 3 और 4 लेयर्स के बाद सेम प्लास्टर हर बारी बैम्बू स्टिक के साथ बिटन किया जाता था, और सरफेस को बाद में एक लाइम पेस्ट की थिन कोटिंग के साथ कवर किया जाता था, और जो कि पेंटिंग सरफेस तैयार हो जाता था। Then line drawings required for the painting were drawn with red color raddle on the surface where painting was to be completed while the surface was wet. After the first outlining of the composition, the painter would then define the subjects with an undercoat of grey. After covering the whole surface as a finished painting with natural water soluble colors, the painter would again give a last polishing with a smooth stone to give a shine. In the end, finishing lines were made by black or brown color. तो इसके अंदर सबसे पहले लाइन ड्राइंग्स की नीड होती थी जिसे रेड कलर के साथ उस सरफेस पर बनाया जाता था, और जब तक वो सरफेस वेट रहता था तभी ही उस पेंटिंग को साथ के साथ कंप्लीट किया जाता था। और फर्स्ट आउटलाइनिंग कॉम्पोजिशन की करने के बाद पेंटर उसको एक ग्रे कलर की कोटिंग के साथ उसे डिफाइन करते थे कि उन्होंने उस पेंटिंग में क्या बनाया है, और उस पूरी पेंटिंग को फिनिश करने के बाद में एक नेचुरल वाटर सोल्यूबल कलर्स के साथ उसे स्मूथ स्टोन के साथ में लास्ट में पॉलिश किया जाता था ताकि उसमें पेंटिंग के अंदर शाइन आ जाए, और सबसे लास्ट में फिनिशिंग लाइन देने के लिए वो ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज़ करते थे। इसके बाद कलर्स ऑफ अजंता हैं। कलर्स ऑफ अजंता, the pigments of color came from local volcanic rock, shades of green and ochre resulting from weathering of basalt. Natural white color was prepared from limestone or chalk, blue from Neil indigo plant. Later on, lapis lazuli was imported and ground for the blue pigment. Other colors were yellow, vermilion, terravet and red from red raddle, a type of red stone powder. Some believe that the yellow color might have been prepared from arsenic. Rest all the colors used in Ajanta paintings were a mixture of red, blue, yellow and white. Lamp black was the only organic color. The colors were bonded with animal glue and vegetable gums. Figures were outlined with thin brush strokes, first in dull red. Local colors were applied with slight shading, usually with the highlights in the middle of the form and the darker tones on the outside. This gave an effect of a shallow relief, occasionally seen in case of jewelry. तो इसमें जो कलर के लिए पिगमेंट जो है वो लोकल वोल्केनिक रॉक जो होते थे उनसे लिया जाता है, जैसे कि शेड्स ऑफ ग्रीन, और ओकर कलर जो है वो वेदरिंग ऑफ बेजाल्ट से लिया जाता था, और नेचुरल वाइट कलर जो है वो लाइमस्टोन या चौक से प्रिपेयर करके बनाया जाता था, और ब्लू कलर जो है वो नील इंडिगो प्लांट से लिया जाता था, और बाद में लेपिस लाजुली ये इंपोर्ट किया जाता था, और ग्राउंड किसके लिए, ब्लू पिगमेंट के लिए। और बाकी जो कलर हैं येलो, वर्मिलियन, टेरावेट एंड रेड फ्रॉम रेड रेडल, अ टाइप ऑफ रेड स्टोन पाउडर, तो ये इनसे लिए जाता था।
और ये माना जाता है कि जो येलो कलर है वो आर्सेनिक से प्रिपेयर किया जाता था। और बाकी जो कलर्स अजंता के अंदर यूज़ किए गए हैं वो सभी रेड, ब्लू, येलो और वाइट कलर से मिक्स करके बनाए गए हैं। और जो लैम्प ब्लैक कलर है वो ऑर्गेनिक कलर है। और जो कलर्स होते थे उनके अंदर एनिमल ग्लू और वेजिटेबल गम्स ये उसके साथ ऐड किए जाते थे ताकि उसमें कलर्स में बॉन्डिंग बनी रहे। और फिगर्स की आउटलाइन के लिए थिन ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ किए जाते थे, जिसे पहले रेड डल कलर में ही यूज़ किया जाता था और फिर लोकल कलर्स उसमें अप्लाई किए जाते थे स्लाइटली शेडिंग के साथ में। और उसमें हाइलाइट्स भी दी जाती थी फॉर्म के बिल्कुल मिडल में, और जो डार्कर टोन्स होती थी वो आउटसाइड में दी जाती थी। इससे क्या होता था, एक ये जो हमारी फॉर्म बनाई जाती है वो रिलीफ में लगने लगती थी कि जैसे कि वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है या 3D में है। और ज्वेलरी में कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलती थी। डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्कोस एंड म्यूरल्स। Mural is an artwork painted or applied directly on a wall or a ceiling. It becomes one with any architectural space, no matter how big it is. Fresco, on the other hand, is one of the types of a mural in which painting is done on a wall treated with lime plaster, either dry or wet. The color thus soaks into the surface and becomes one with it. Therefore, a fresco is a mural, but a mural may or may not be a fresco. तो म्यूरल क्या होता है? म्यूरल एक तरह का आर्टवर्क है जिसमें पेंटिंग डायरेक्टली वॉल और सीलिंग पे की जाती है किसी भी आर्किटेक्चरल स्पेस में, और ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना बड़ा है। और दूसरी तरफ अगर हम फ्रेस्को की बात करते हैं तो ये एक तरह का वैसा म्यूरल है जिसके अंदर पेंटिंग जो है लाइम प्लास्टर के ऊपर बनाई जाती है, चाहे वो ड्राई हो या वेट। इसके अंदर जो कलर्स किए जाते हैं वो सरफेस के अंदर सोक कर लिए जाते हैं और वो उसका एक पार्ट बन जाता है, इसलिए इसे फ्रेस्को को म्यूरल भी बोला जाता है। लेकिन म्यूरल फ्रेस्को हो भी सकता है और नहीं भी। So this was your all the things: number of caves, types of caves, technique of Ajanta fresco and murals, color of Ajantas, difference between frescoes and murals. I hope you understand it very well. Thank you.